EJB stands for Enterprise Java Bean. So first thing, what is EJB? EJB, it is a server side component, right? EJB क्या है? Server side component है. That what is the main advantage of EJB? ठीक है, advantage क्या है? EJB contains business logic. It contains business logic. See, what is EJB? Enterprise Java Bean. Enterprise, it is the edition name. Okay, Java edition. Enterprise is Java edition. Okay, this is programming language. This is edition. This enterprise is edition. Java is programming language, right? And Bean is object. Bean means Bean जो है हम लोग कहाँ पे create करते हैं? It is a Java class only. Bean, it is a Java class only. Okay. So why it is called as Bean क्यों बोलते हैं? Bean मतलब object. Bean means object. ठीक है. तो बीन कैसा होता है? एनोटेड होता है. बीन कैसा होता है? एनोटेड होता है. तो वो एनोटेड बीन के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं. कि वो एनोटेड बीन के अंदर क्या होता है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट. ओके. सो व्हाट बीन कंटेन्स? इट कंटेन्स बिजनेस लॉजिक. इट कंटेन्स बिजनेस लॉजिक. So why it is used? Why enterprise Java Bean it is used? Okay, why there is a need to create Bean? क्यों need है? To create secure application, to reuse the component. ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक बीन क्लास बना दी. बीन मीन्स एक नॉर्मल जावा क्लास है जिसके अंदर तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो विद एनोटेशन. तो इफ यू हैव क्रिएटेड सपोज अ नॉर्मल जावा क्लास, वहां पे तुमने बीन क्रिएट कर दिए, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए. ओके, तो वो तुम रीयूज कर सकते हो इन अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो. So it is a reusable software component. Reusable. It is portable because it is portable. Java है ना, so it is portable. Okay. Then in the previous session, what we have covered types of enterprise Java Bean. तो types कितने हैं? Two types है. Two types of, ये three मत देखो, two types of enterprise Java Bean. तो कौन से two types थे वो? Two types of enterprise Java Bean: session bean and message driven bean. Session bean and message driven bean. So session bean, how many types of session bean is there? How many types of session bean? Stateless, stateful and singleton. Three types है. Session bean के three types है और enterprise Java bean के there are two types. Session bean and message driven bean. Okay. And one more thing, message driven bean uses which API? Which messaging service? JMS. JMS, Java Messaging Service. Java Messaging Service. I am revising previous जो cover हुआ था. Message driven bean uses which API? JMS, Java Message Service. Okay. तो JMS में हमको पता है, we know that JMS contains two types of messaging domains. What are they? Point to point messaging domain and subscriber domain, right? JMS जो है message driven bean uses which API? JMS API, Java Message Service API. And Java Message Service, it is JMS API to use for sending and receiving messages. For sending and receiving messages, JMS API is used. Okay. So JMS contains two types of messaging domains. कौन से two types है वो? Point to point and subscriber. Point to point and subscriber domain. So we know that subscriber कौन सा है? One to many है ना. Subscriber domain जो है it is one to many. Point to point means one to one है, right? And subscriber domain is one to many. It is like broadcasting of messages. ठीक है. तो point to point में जो messages है hold कौन करता है? Q. Okay, Q. And subscriber domain में who is holding and who is responsible for holding and sending the messages? Subscriber domain में who is responsible for holding and sending the messages? Topic. Okay.
Okay, now we have revised previous session. The previous session topics which we have covered. EJB क्या है and types कितने हैं EJB के. Let's see life cycle of EJB. Okay. See life cycle जो है EJB का जो सी लाइफ साइकिल मींस क्या है, जो एंटरप्राइज बीन है हमारा, एंटरप्राइज एडिशन है, अगेन आई एम रिपीटिंग, एंटरप्राइज एडिशन है, बीन मतलब ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, सो लाइफ साइकिल एंटरप्राइज बीन का मीनिंग क्या है, एंटरप्राइज बीन जो है गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. ओके, जैसे अभी ह्यूमन बीइंग भी जो है अपने लाइफ टाइम में उनके वेरियस स्टेजेस आते हैं ना, पहले बॉर्न होना, ठीक है, फिर वो चाइल्ड रहेगा, फिर वो मतलब टीनेजर्स में रहेगा, ठीक है, तो फिर वो ओल्ड हो जाएगा. तो एक स्टेजेस है ह्यूमन बीइंग के भी, लास्ट स्टेज डेथ है. ओके, तो एंटरप्राइज बीइंग भी क्या है, गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. ठीक है, और लाइफ टाइम मीन्स अपने लाइफ साइकिल में वो उसके वेरियस स्टेजेस होते हैं एंटरप्राइज बीइंग के. तो ईच टाइप ऑफ एंटरप्राइज बीन, जितने भी टाइप्स है एंटरप्राइज बीन के, तो कौन से टाइप्स है, स्टेटफुल, स्टेटलेस, स्टेटलेस, सिंगलटन एंड मैसेज ड्रिवन. ये 4 टाइप देखे ना हम लोग ने, स्टेटफुल, स्टेटलेस, सिंगलटन एंड मैसेज ड्रिवन. ठीक है, तो ईच टाइप ऑफ एंटरप्राइज बीन, जितने भी टाइप्स है, ठीक है, कौन से टाइप्स है, अगेन सी, स्टेटफुल, स्टेटलेस, सिंगलटन एंड मैसेज ड्रिवन. ठीक है, तो जितने भी 4 ये टाइप्स है, हैज अ डिफरेंट लाइफ साइकिल, हैज अ डिफरेंट लाइफ साइकिल. Okay, so before seeing this life cycle of enterprise bean, let's revise again कि stateless session bean क्या होता है. Okay, what is stateless, then stateful or singleton. Okay, see what is stateless session bean. Stateless session bean doesn't keep a conversational state with the customer or client. मतलब it is not maintaining any state with the customer. कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं करता है. ठीक है, तो व्हेन अ क्लाइंट, जब क्लाइंट इन्वोक करता है किसके मेथड्स ऑफ स्टेटलेस बीन. ठीक है, तो बीन इंस्टेंस वेरिएबल, तो बीन का जो वेरिएबल है, मतलब वो जो बीन तुमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, बीन का जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल में क्या रहता है, वेरिएबल क्या करता है, स्टेट स्टोर करता है, राइट. तो वो स्टेट कब तक स्टोर करेगा, जब तक कि तुम इन्वोक कर रहे हो रिक्वेस्ट, उतने ही टाइम तक. मतलब उसके जब रिक्वेस्ट इन्वोक करने का टाइम ओवर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इट विल नॉट मेंटेन एनी स्टेट विद द कस्टमर, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेटलेस सेशन में. ओके, तो सी यहाँ पे देखो, क्लाइंट है, ये सर्वर है. ठीक है, सर्वर के अंदर जावा एंटरप्राइज एडिशन सर्वर एक कंटेनर है. तो कंटेनर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दी बीन वेरिएबल्स. ओके, कंटेनर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दी बीन वेरिएबल्स. तो अगर स्टेटलेस टेक्नोलॉजी यूज किया है पेज पे, सपोज स्टेटलेस टेक्नोलॉजी इज यूज, तो क्लाइंट इज इन्वोकिंग, मतलब क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट इज हाँ, क्लाइंट इज गिविंग दी, क्लाइंट इज ट्राइंग टू एक्सेस दी स्टेटलेस बीन. तो बीन इंस्टेंस जो एक्सेस कर रहा है, सी बीन इंस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द EJB कंटेनर. तो क्या होगा, इंस्टेंस ऑफ सी
सपोज एट द टाइम ऑफ इन्वोकेशन, ठीक है, तो इन्वोक करने के टाइम पे बीन के वेरिएबल्स में वो क्या करेगा, इट विल स्टोर द स्टेट ऑफ द बीन। जैसे ही इन्वोकेशन पीरियड ओवर हुआ, इट विल नॉट मेंटेन एनी स्टेट विद द क्लाइंट। सो वेयर इट इज यूज्ड, जो स्टेटलेस बीन है, वेयर इट इज यूज्ड, कहाँ पे यूज होता है, सिंस दे कंटेन मेनी वेरियस कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स के भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, राइट। द स्टेटलेस सेशन बिन कैन ऑफर बेटर अडेप्टिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन दे दैट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट। जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, वहां पे स्टेटलेस सेशन बिन इज यूज, ठीक है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, तुम्हारा एक टाइप का मेमोरी सेव हो रहा है, बिकॉज इट इज नॉट होल्डिंग एनी स्टेट। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेटलेस सेशन बिन के। द स्टेट ऑफ द बिन हैज नो इंफॉर्मेशन और डेटा फॉर ए पर्टिकुलर क्लाइंट, मतलब जो बीन है उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहता है क्लाइंट का। सेकेंड थिंग इज इन अ प्राइवेट मेथड इन्वोकेशन द बीन परफॉर्म्स अ जेनेरिक टास्क फॉर ऑल क्लाइंट। अगर प्राइवेट जो मेथड तुम इन्वोक कर रहे हो, तुम उसको प्राइवेट डिक्लेयर किए, प्राइवेट डिक्लेरेशन का मीनिंग ये है कि अगर मेथड प्राइवेट है तो बीन किसके लिए तुमने क्रिएट की हो, कोई जेनेरिक टास्क के लिए, ठीक है, जेनेरिक मतलब कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए तुमने बीन क्रिएट की हो। तो प्राइवेट कब होगा, जब स्पेसिफिक कोई टास्क होगा, जैसे कि कोई कस्टमर को स्पेसिफिकली मुझे कुछ डिस्काउंट देना है। ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। फॉर ऑल वी विल नॉट डू, प्राइवेट मेथड इन्वोकेशन करेंगे, ठीक है, अगर स्पेसिफिक कुछ टास्क परफॉर्म करना है। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टेटलेस का, द बीन इम्प्लीमेंट्स अ वेब सर्विस। तो बीन मतलब स्टेटलेस सेशन बीन भी हम लोग यूज करके वेब सर्विस क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द वेब ऑल्सो, मतलब इंटरनेट के जो सर्विसेज है, वहां पे स्टेटलेस सेशन बिन भी यूज होता है, ठीक। एनी एग्जांपल ऑफ स्टेटलेस सेशन बिन, स्टेटलेस सेशन बिन का कोई एग्जांपल। पेमेंट करने के टाइम पे, राइट, जब प्रोसेसिंग होता है, जब पेमेंट हमारा प्रोसेस स्टेट में होता है, या फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर डिपॉजिटिंग, ठीक है, डिपॉजिट कर रहे हो मनी या तुम विड्रॉ कर रहे हो, तो वो स्टेटलेस सेशन बिन है कि नहीं, स्टेटलेस सेशन बिन। प्रोसेसिंग अ पेमेंट, मेकिंग अ डिपॉजिट और विड्रॉइंग, ये सब में क्या हो रहा है, स्टेटलेस सेशन बिन यूज हो रहा है। ओके, ओके, नेक्स्ट इज स्टेटफुल सेशन बिन। स्टेटफुल सेशन बिन, दिस ऑब्जेक्ट comprises the values of its instance variable। See, यहाँ पे क्लियरली वी कैन से दैट स्टेटफुल सेशन बीन में जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल्स जो होते हैं, डिनोट द स्टेट ऑफ ए यूनिक क्लाइंट और बीन सेशन। वो वेरिएबल्स में क्लाइंट का स्टेट मेंटेन रहता है इन स्टेटफुल सेशन बीन, ठीक है। तो क्लाइंट, सी क्लाइंट जो है हमेशा वो बीन से इंटरेक्ट करता है। अगर सपोज मैं कोई भी साइट ओपन कर रही, एनी साइट, बिग बाजार और एनी ऑनलाइन साइट, ओके, जियो मार्ट, ओके, तो क्या हो रहा है, अगर मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, तो मैंने कोई भी लाइक ग्रोसरीज में गई, लाइक ग्रोसरीज में से मुझे कुछ लेना है, ठीक है, और एनी अदर थिंग, तो मैं क्या करूंगी, मैं इन्वोक कर रही रिक्वेस्ट, राइट। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट इन्वोक करता है। एट द टाइम ऑफ इन्वोकिंग द रिक्वेस्ट, क्लाइंट कहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट के साथ में। तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है ग्रोसरीज जो तुम ले रहे हो, तो वो किससे एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट। तुम तो डायरेक्टली कर रहे हो, पर
पीछे बैकग्राउंड में तो कुछ कोडिंग किया हुआ है ना, राइट? तो वहां एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट से, वो बीन से तुम इंटरेक्ट कर रहे हो। सो इंस्टेंस वेरिएबल में क्या रहता है, इंस्टेंस, नॉट इंस्टेंस वेरिएबल, स्टेटफुल सेशन बीन में, स्टेटफुल सेशन बीन का जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें क्लाइंट का स्टेट मेंटेन होता है। ठीक है, लाइक शॉपिंग कार्ट, जो जो तुम कार्ट में ऐड करते जाते हो, ठीक है, दैट इज स्टेटफुल। शॉपिंग कार्ट होता है ना, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है वहां पे शॉपिंग कार्ट होता है, वहां पे तुम आइटम्स ऐड करते हो, लाइक टोटल अप, देन यू कैन गिव ऑर्डर, ओके। तो वो जो शॉपिंग कार्ट है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टेटफुल सेशन भी, ओके। बिकॉज वो क्या कर रहा है, इट इज मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट। मल्टीपल मीन्स तुमने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस एक्सेस किए, ग्रोसरीज में गए, कभी तुम दूसरे सेक्शंस में गए, राइट? तो मल्टीपल रिक्वेस्ट का जो है, इट इज मेंटेनिंग द स्टेट, ठीक है। अब कब तक वो स्टेट रहेगा, जब तक क्लाइंट टर्मिनेट नहीं करता। व्हेन द क्लाइंट टर्मिनेट्स द सेशन, इट इज नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद द क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट अगर उसको रिमूव कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, तो स्टेट मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने रिमूव कर दी, तो मतलब क्लाइंट के पे डिपेंड है, क्लाइंट टर्मिनेट कर रहा है सेशन, इट इज नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद द क्लाइंट। See, in case if the client eliminates the bean, the session closes and the state is omitted. अगर क्लाइंट ने एलिमिनेट कर दिया बीन को, मतलब कोई भी एक जो प्रोडक्ट उसने सेलेक्ट किया उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद बीन, ऐसा कंसिडर करो, तो क्या होगा, सेशन क्लोज हो जाएगा और स्टेट, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेशन क्लोज हो जाएगा और स्टेट जो मेंटेन किया है उसने वो प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल, वो भी ओमिट हो जाएगा। नाउ सी व्हाट इज सिंगलटन सेशन बिन। सिंगलटन सेशन बिन क्या है? सी सिंगलटन सेशन बिन जो है, अभी इफ यू ऑब्जर्व, स्टेटफुल और स्टेटलेस जो है, वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे बीन है वहां पे, फॉर ईच रिक्वेस्ट बीन इज प्रेजेंट, ओके। हर एक रिक्वेस्ट के लिए बीन क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट, इट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट। पर सिंगलटन में ऐसा नहीं है। सिंगलटन सेशन बीन मेंटेन्स वन इंस्टेंस पर एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन के लिए एक ही इंस्टेंस यहाँ पे होता है, फॉर वन एप्लीकेशन वन इंस्टेंस। सिंगलटन सेशन बीन मेंटेन्स वन इंस्टेंस पर एप्लीकेशन, ठीक है, और पूरे लाइफ साइकिल में वो इंस्टेंस चलता है, ठीक है। दैट दैट जो ऑब्जेक्ट जो है इंस्टेंस एग्जिट्स फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये कब यूज होगा, सिंगलटन सेशन बीन, वेयर इट इज यूज्ड? सिंगलटन से स्टार्टअप के लिए, राइट? प्रीवियस सेशन में भी देखे थे हमने, स्टार्टअप के लिए, जहां पे भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप के लिए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्टार्टअप है वो कैसे होता है, एक ही बार इन्वोक होता है, ठीक है, फिर पूरा चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक रन चल रहा है वही इंस्टेंस चलता रहेगा, बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम में नया नया इंस्टेंस इन्वोक नहीं होता है, ठीक है, स्टार्टअप के लिए। तो स्टार्टअप फॉर द स्टार्टअप पर्पस, स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, दिस सिंगलटन सेशन बीन आर यूज, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, सी दिस, इट टेक्स केयर ऑफ द स्टेट बट डज नॉट होल्ड द स्टेट। स्टेट का केयर करेगा, लाइक स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन, तो स्टेट का केयर करेगा। स्टेट मतलब एप्लीकेशन को स्टार्ट करना, तो वो एक स्टेट ही है ना, ठीक है। बट डज नॉट होल्ड दी स्टेट, कोई स्टेट को होल्ड नहीं करेगा। जैसे अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अनएक्सपेक्टेड क्रैश होता है या शट डाउन होता है, तो उसका स्टेट वो मेंटेन नहीं करता है वो ऑब्जेक्ट। फॉर द क्लीनअप टास्क, जैसे अभी हमारे फोन में क्लीनर होते हैं, डेस्कटॉप पे हमारे क्लीनर होते हैं, राइट? तो क्लीनअप टास्क के लिए it can be used if you want to perform cleanup task,
ऑन क्लोजिंग द एप्लीकेशन और शट डाउन एज वेल। जब तुम एप्लीकेशन क्लोज करते हो तो क्लीन अप होता है बैकग्राउंड में, ठीक है, या शट डाउन करेंगे तो क्लीन अप ऑपरेशन होगा। तो ये सब काम किसका है? सिंगलटन सेशन बिन का है। ठीक है? तो याद रखो सिंगलटन सेशन बिन क्या है? इट मेंटेन्स ओनली वन इंस्टेंस पर एप्लीकेशन। और कहाँ पे यूज होता है? फॉर द स्टार्टअप पर्पज, ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्टअप के लिए। लाइक कहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के टाइम पे, ठीक है। इट इज नॉट मेंटेनिंग द स्टेट। हाँ, क्लाइंट का स्टेट मेंटेन नहीं करता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्लीकेशन तुम्हारा अनएक्सपेक्टेड क्रैश और शटडाउन होगा तो उसका स्टेट मेंटेन नहीं करेगा। स्टेट मेंटेन नहीं करेगा मीन्स कुछ याद नहीं रखता है वो कि ये शटडाउन हुआ था, ये क्या, ये क्रैश हुआ था, मतलब कुछ नहीं, ठीक है। इट डजंट रिमेम्बर एनी स्टेट। तो ये इन्वोक कब होता है? अपॉन एप्लीकेशन स्टार्टअप। जो सिंगलटन सेशन बी ने व्हेन इट इज इन्वोक्ड। सी, इन्वोक का मीनिंग पता होगा सबको। अभी जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगी, बटन, मेरा माउस जो है, माउस का बटन कब इन्वोक होगा? जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगी, है ना। जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगी माउस का बटन, जब तक वो इन्वोक होगा क्या? तो क्लिक एक्शन है इन्वोक के लिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जब तक वो इन्वोक नहीं होगा, मतलब एक्टिव नहीं होगा, जब तक तुम्हारा एप्लीकेशन स्टार्टअप नहीं होगा। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्टअप होगा, सिंगलटन सेशन बिन इन्वोक्ड होगा। तो इट इज व्हेन इट इज इन्वोक्ड, व्हेन इट इज इंस्टेंशिएटेड, इट इज इंस्टेंशिएटेड अपॉन एप्लीकेशन स्टार्टअप। तो जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, सिंगलटन सेशन बिन क्या करेगा? इनिशियलाइजेशन करेगा एप्लीकेशन का, ठीक है। इनिशियलाइजेशन करना, देन क्लीन अप टास्क करना। जैसे एप्लीकेशन शट डाउन होगा तो उसका क्लीन अप करना, ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है? दैट इज डन थ्रू वन सिंगल इंस्टेंस। इज इट क्लियर? स्टेटफुल, स्टेटलेस एंड सिंगलटन। इसके बाद वी हैव टू सी द लाइफ साइकिल। सबका लाइफ साइकिल ऑफ स्टेटलेस सेशन बीन, लाइफ साइकिल ऑफ स्टेटफुल, लाइफ साइकिल सिंगलटन सेशन बीन का है, और लाइफ साइकिल एक और है मैसेज ड्रिवन बीन, लाइफ साइकिल ऑफ मैसेज ड्रिवन बीन। फोर लाइफ साइकिल्स वी हैव टू सी। इज इट क्लियर? टाइप्स ऑफ किसके टाइप्स से? टाइप्स ऑफ सेशन बीन।